ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਨਿਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸੱਜ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨੋਬਿਰਤੀਆਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ। ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਲੋਕ ਨੰਬਰ 13, 14 ਅਤੇ 15 ਸਮਝਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਲੋਕ ਨੰਬਰ 15 ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਲਿਆਂਦੀ, ਜਿਸ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਹਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੁੰਦਰ ਬਸਤਰ ਪਹਿਨਦੇ ਹਾਂ, ਚੰਗਾ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੁੜੀਏ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਭਗਤ ਜੀ ਭਲਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਕਬੀਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਝੁੰਗੀਆ ਭਲੀ ਪਾਠ ਕੋ ਸਤੀ ਗਾਉ, ਆਗ ਲੱਗੋ ਤੇ ਧੌਲ ਹਰ ਜੇ ਨਾਹੀ ਹਰ ਕੋ ਨਾਉ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਸਾਧੂਆਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਚੰਗੀ ਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਜਾਂ ਜਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੋ ਸੱਤ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਸੱਤ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੋ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ ਬਲਦੀ ਹੋਵੇ। ਭਾਵ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਏ, ਕਿਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਠੰਡ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ, ਆਗ ਲੱਗੋ ਤੇ ਧੌਲ ਹਰ ਜੇ ਨਾਹੀ ਹਰ ਕੋ ਨਾਉ। ਉਹਨਾਂ ਚੁਬਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਹੀ ਭਾਵ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੈ ਨਾਮ ਜਪੀਐ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰੇ, ਸੇ ਅਸਥਲ ਸੋਇਨ ਚੌਬਾਰੇ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਸੰਤਨ ਕੀ ਝੁੰਗੀਆ ਭਲੀ। ਇੱਥੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਧੂ ਰੜੇ ਤੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਝੁੱਗੀ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਹਰ ਹੀ ਆਕਾਸ਼ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ, ਦਿਨ ਕੱਟਣਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਚੁਬਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪੀਐ ਮੇਰੇ ਗੋਇੰਦਾ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੇਈ ਨਗਰ ਉਜਾੜੀ ਜੀਓ। ਉਹ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਘੁੱਗ ਵਸਦਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਉਜਾੜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਜੰਗਲ ਬੀਆਬਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਏ। ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਵੀ ਚੁਬਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੀ ਹੋਏਗੀ।
आओ हुण अज दी विचार असी श्लोक नंबर 16 तो शुरू करते हैं, जो श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के अंक नंबर 1365 ते सुभाएमान है। पिछे सी कबीर संतन की झुंगिया भली, ते हुण आखदे ने कि इत्थे नाम जपदा जपदा संत बाहर रड़े ते बैठा होया, कखां दी कुली विच दिन कटदा होया, जे बई वो अकाल चलाना ही कर जाए। कबीर संत मुए क्या रोइयै, जो अपने ग्रह जाए, रोवो साकत बापुरे, जो हाटै हाट बिकाए। संत मूए क्या रोइयै, ये जड़ा शब्द मूए वरत्या भाव संत मर जाए तो उन्होंने काहदे लई रोईए। सिक्खी विच अपनी मर्यादा कहती है कि जे कोई मर जाए तो उन्होंने मर जाए नहीं आखीदा, आखीदा अकाल चलाना कर गया। सो गल इक्को ही है, ना भावें कोई दे लो घटना तो उहो ही घटदी है कि आत्मा ते शरीर का विछोड़ा हो जाता है। उस नूं चाहे अकाल चलाना आख लीए ते चाहे मूए शब्द वरत लीए, कोई बहुता फर्क नहीं पैंदा। पर जे संत मर जाए, संत अकाल चलाना कर जाए, उन्होंने रोना नहीं चाहिए। कबीर जी इस तरह आखदे ने। असीं कबीर जी तो पुछांगे कि क्यों नहीं रोना चाहिए। भी ये जिहड़ी घटना है साडे संसारी लोकां दी निगाह विच बड़ी दुखदाई है। भावें दुखदाई नहीं है, ये साडे लई दुखदाई है। ये घटना जन्म वर्गी ही है। जे असीं थोड़ा जिहा ठरम्मे नाल सोचांगे तो असीं इस सिट्टे ते पहुँच जावांगे कि जदों साडे घर उस जीव का जन्म होया सी ना, उदों किते मरण हो के ही जन्म होया सी। ते जे मरण एडा माड़ा होवे तो साडे घर खुशियां क्यों हुंदियां? जन्म होया ना तो कितों मरण हो के ही होया सी। ते जे हुण मरण होया है तो हुण फिर किते जन्म ही होना है। फिर गमी किस गल दी, दुख किस गल दा? ये जन्म ते मरण दोवें इक्को ही घटना दे नाम ने, दो घटनावां नहीं हैं। पर साडे सोचण दा एक वखरा ढंग है। जदों असीं कुछ गेन करदे हां, जदों असीं कुछ प्राप्त करदे हां ते असीं खुशियां मनाउने हां। जदों कुछ लूज हुंदा है, साडे हत्थों कुछ जांदा है, उदों असीं दुख मनाउने हां। ये साडी मनो प्रवृत्ति इस तरह की है। और असीं लंबे समय तो संसार विच ये कुछ हुंदा वेख के उसनूं अपना लैने आ कि इस तरह ही हुंदा है। मरण ते रोईदा ही है, जन्म ते खुश ही होईदा है। जे किते संसार की रीत इस दे उल्ट चल पई हुंदी भी जदों कोई जन्म लवे उदों रोईदा है, तो आपां उदों ही रोया करना सी भी सारे ही इस तरह रोंदे ने भी विचारा जम पिया है। ते मरण ते असीं हस्या करना है। जे संसार की ऐसी रीत हुंदी भी असीं आखना ही छुट गया दुखां तकलीफां तो, अपने घर चला गया, बड़े खुशी होना सी आपां। पर जिवें संसार की रीत चल पवे ना, ये संसार दी इहनूं भेडा चाल आखदे ने। एक भेड़ खूह च डिगे, ਉਹਦੇ मगर भावें 1000 भेड़ होवे, वो सारियां खूह च ही डिगणगियां, क्योंकि एक जू डिग पई है। तो वो सोचदी है कोई चंगी थां ही होनी जिथे वो गई है पहली, वो पिछे ही चलीए ना आपां भी। सो आपां सारे कुछ इस तरह की प्रवृत्ति दे मालक हाँ। पर जिहड़े संत लोग हुंदे ने वो इस तो गांह निकल जाते हैं। वो संसार की फिर परवाह नहीं करते। आपां पिछली वारी ना दो शब्द समझे सी, एक बेपरवाह ते एक लापरवाह। असल च साधु महापुरुष बेपरवाह हो जाते हैं। वो फिर ना संसार की लोगों की परवाह नहीं करते कि कोई की आखेगा, साडा नक किवें बचेगा, साडी इज्जत किवें बचेगी, इस गल की वो परवाह नहीं करते। वो तो रब्बी सिद्धांत वेखदे ने, रब्बी मर्यादा वेखदे ने, तो उस रब्बी मर्यादा विच मानो हुक्म विच बझे होए अगे तुरे जाते हैं। कबीर साहब आखदे ने जे संत मर जाए तो रोना नहीं चाहिए। क्यों नहीं रोना चाहिए?
क्योंकि वो तो अपने घर जाता है, तो रोईए काहदे लई? वो तो अपने सच्चे घर विच, असली घर विच, अपने निज घर विच चला गया, तो काहदे लई रोईए? हुण इस गल नूं असीं गुरु अर्जन देव महाराज जी नूं पुछदे हां कि सतगुरु जिस घर नूं कबीर साहब साडे सामने रखदे ने भी संत मर जाए तो रोईदा नहीं क्योंकि वो अपने घर चला जाता है, वो किहड़े घर जाता सानू तो पता नहीं। जे पता होवे तो शायद असी ना ही रोईए, सानू पता नहीं इसलिए असी रोने आ कि साडे कोलों चला गया। गुरु अर्जन देव महाराज सानू समझाउंदे ने, सूख महल जाके ऊंच दुआरे। संतां दे घर दा नक्शा वेखो, क्या सोहनी तस्वीर गुरु अर्जन देव महाराज जी ने साडे सामने रखी है। जिस घर में संत जाते ने, असल विच आपां भी उसे ही घर दे वासी हाँ, पर सानू वो घर ही भुल गया। जिवें इंडिया तो आए हैं ना आपां, ते जिहड़े लम्मा समा हो गया आया नूं कदी मुड़ के गए ही नहीं किसी कारण, वो पिछला घर भुल ही जाता है, फिर इत्थों वाला ही घर सोहना लगन लग पैंदा है। इसे तरह जित्थों आपां आए हैं ना, सानू उत्थों आया नूं बड़ा लम्मा समा बीत गया, तो मुड़ के असी कदी घर गए ही नहीं, ना ही सानू घर दा चेता किसे करवाया है। इसलिए सानू वो पूर्ण तौर पर भुल गया है कि साडा घर किन्ना सोहना सी। वो ही संतां दा घर है, वो ही अपना घर है। आपां भी उसे ही घर जा सकते हाँ जेकर संतां वाली किरिया कर्म करिए, नाम सिमरन करिए, सेवा करिए, चंगे कर्म करिए। वो किहड़ा है अपना घर सारियां दा? सूख महल जाके ऊंच दुआरे। जिस घर दे बड़े उच्चे उच्चे दरवाजे ने, ते वो घर बड़ा ही सुखदाई है, बड़ा ही सुखदाई है। तामै वासें भगत प्यारे। उस उच्चियां उच्चियां दरवाजियां वाले सोहने सुखदाई घर दे विच संत महापुरुषां दा निवास हो जाता है जदों इस संसार नूं छड्ड के वो चले जाते हैं। शायद कबीर जी तां आखदे ने कि उन्हां नूं क्यों रोंदे हो, वो तो इन्ने सोहने सुखदायक घर विच चले गए ने, जिहड़ा उन्हां दा निज घर है, उन्हां नूं क्यों रोईए? फिर दसदे ने, सहज कथा प्रभ की अथ मीठी। उस उच्चे उच्चे दरवाजियां वाले सुखदायक घर दे विच ना एक प्रभु की कथा हर वक्त हुंदी रहिंदी है, कदी वो बंद नहीं हुंदी। जे किते वाहगुरू साडे भी भाग जगाए, असीं भी उस घर च अंदर जाइए, उत्थे रात दिन उत्थे अनहद शब्द वजै दिन राती। रात दिने अनहद शब्द की कनघोर हो रही है। गुरमती शब्द सुनावणिया, गुरु की मत ते चल पईए ते वो सहज कथा सुननी प्रारंभ हो जाती है। उस घर दे वे सहज कथा प्रभ की अत मीठी, बड़ी मिठी कथा हो रही जे उत्थे उस अपने घर विच, जिस घर दे आपां वासी हाँ। सानू वो घर भुल ही गया, असल विच गल ये बनी है। वो घर किहड़ा है जी? निज घर, जिसनूं 10वां द्वार आखदे ने, जिन्नूं भगत रविदास जी बेगमपुरा आखदे ने, जिसनूं गुरबाणी विच अनुभव नगर आख्या गया है। उस घर की गल गुरु जी करते ने। उत्थे बड़ी प्यारी ते मिठी कथा हो रही है। विरले काहू नेत्रों डीठी, पर साडे सारियां विचों किसे विरले ने उस कथा का आनंद माणिया, उस कथा नूं सुनिया है, जिसनूं गुरु जी नेत्रों डीठी आख रहे ने। अखीं वेखना अपने घरे जाके कि ਉਹਦੇ किड्डे उच्चे उच्चे दरवाजे ने, साडा घर किन्ना वड्डा महल वर्गा है, किन्ना सुखदायक है, सारियां सहूलतां साडे घर विच ने, ते साडे घर विच किन्नी प्यारी ते मिठी कथा 24 घंटे हुंदी रहिंदी है। तह गीत नाद अखारे संगा। उस साडे सोहणे सुखदायक घर दे अंदर रात दिने सोहणे गीत ते नाद हो रहे ने। उत्थे सत संगत हो रही है, उत्थे हर घड़ी बाणी दा पाठ पढ़िया जा रहा। इन्ना सोहना है साडा घर। फिर आखदे ने, ऊहां संत करें हर रंगा। प्यार वाले संत
परमेश्वर दे प्यार विच उस घर विच बह के फिर जुड़े रहिंदे ने। फिर अगला होर किन्ना सुआदला बचन है, तह मरण ना जीवन सोग ना हरखा। साडे जीवन विच ये चार घटनावां वापरदियां रहिंदियां ने। हर घड़ी असी किसी ना किसी अवस्था विच हुंदे आ। दो चीज़ां ने, मरण ते जीवन, जिहड़े इक्को ही सिक्के दे दो पहलू ने, दो पासे ने। दूसरा है सोग ते हरख, खुशी ते गमी, ये भी इक्को ही सिक्के दे दो पहलू ने, इक्को ही चीज़ दे दो नां ने, इस तरह आख लईए। सो उस घर दे विच, जिस घर ਵਿੱਚ संत लोग चले जाते ने, तां ही कबीर जी आखदे ने उन्हां नूं ना रोया करो। क्यों नहीं रोवो? क्योंकि जिस अपने निज घर विच ਉਹ चले गए ने, उत्थे ना तो हुण दोबारा मौत होनी है, ते ना ही दोबारा उत्थे जन्म होना है, ना ही उत्थे कदी खुशी हुंदी है, ते ना ही उत्थे कदी गमी हुंदी है। इहदा मतलब है कि उत्थे हमेशा इक्को जी अवस्था टिकी रहिंदी है। उत्थे कदी उतरा चढ़ा नहीं आउंदा, बस इक्को जी अवस्था परमात्मा दे प्यार रंग विच ये आत्मा रंगी जाती है, ते हर वक्त उहदे प्यार दा फिर आनंद माणदी रहिंदी है। फिर आखदे ने साच नाम की अमृत वरखा। उस साडे सोहणे जे घर दे विच परमात्मा दे सच्चे नाम दी अमृतमई वरखा हुंदी रहिंदी है। किन्ना आनंददायक होवेगा अपना घर। गुरु पंजवें पातशाह आपां सारिआं नूं याद करा रहे ने, अपने घर नूं याद करो। अज इस विचार नूं सुन के ना, जदों घर जाओगे, घर जाके जदों इकल्लियां बहन दा समा मिले, ते अपने घर नूं याद करके वेखिया जे कि गुरु अर्जन देव जी ने अज साडे घर दा नक्शा सानूं दिखाया है। किन्ना सोहना है साडा घर। असीं इत्थे ही इन्हां कोठियां मठलियां विच फस के ते उलझ के रह गए हाँ। साडी याद विचों साडा वो प्यारा घर निकल ही गया है। क्यों निकल गया है? क्योंकि असीं माया दे झमेलियां विच फस गए हाँ, ते लम्मा चिर हो गया फसियां नूं। इस करके सानूं साडा असली घर जिहड़ा है वो भुल ही गया, जिथे सच्चे नाम दी अमृत वरखा हर वक्त बरसदी रहिंदी है। फिर गुरु जी आखदे ने, गुरु अर्जन देव महाराज दी वेखो निमरता किन्नी है। वो कहिंदे ने कि घर मैनू नहीं सी पता, मैनू भी मेरे गुरु ने ही विखाया सी। वेखो सानू भी साडा गुरु ही ये घर विखा रहा है। जे आपां थोड़ा जिहा यतन करिए ते आपां अपने घर पहुँच सकते हैं। सानू साडे घर दा सोहना रूप गुरु महाराज ने विखा दिता है। थोड़े जे यतन नाल ही चेता करिए ते चेते विच चीज़ आ जाती है जिहड़ी अपनी होवे, जिहड़ी बगानी होवे, कदी वेखी ना होवे। लख कोई आखी जे बड़ी सोहनी है, साडे चित्त विच नहीं आउंदी। पर जिहड़ी अपनी होवे, जिथे आपां इन्ने पता नहीं किन्ने साल रहे होइए, किसी कारण चेता भुल गया होवे, जे सानू कोई चेता करा देवे भी तू इत्थे कखां दी कुल्ली विच बहार पिया माणदा है, तेरे ते घर महिलां वर्गे सन, हौली हौली चेता आ जाएगा। ओ मैनू याद आ गया साडे घर इन्ने सोहणे सन। गुरु अर्जन देव आखदे ने मैनू भी चेता भुलिया सी, पर मेरे प्यारे गुरु ने किरपा करके मेरे असली घर दी, मेरे निज घर दी मैनू याद दवा दित्ती, ते मैं थोड़ी जी कोशिश की ते गुरु किरपा नाल मैं अपने असली घर विच चला गया। हुण की आखदे ने गोहज कथा ए गुर ते जाने। मैं अपने सत्कारयोग गुरु कोलों ये गुझी हुई भेद भरी कथा जिहड़ी अपने घर दी है वो जान लई। नानक बोलै हर हर बाणी, इसलिए आखदे ने धन गुरु नानक साहब हुण उस वाहगुरू जी दी बोली बाणी शब्द ही बोलदे रहिंदे ने, कदी हुण अपने घर नूं विसारदे नहीं। इस लई संत मुए क्या रोई है। इहो जे महापुरुष नूं जिहड़ा अपने निज घर विच चला गया होवे, जिहड़ा घर इन्ना सुखदाई होवे जिथे हुण कदी जन्म नहीं होएगा, कदी मरण नहीं होएगा, कदी कोई दुख रोग नहीं तंग करेगा, कदी कोई विपता नहीं बनेगी,
ਜਿੱਥੇ 24 ਘੰਟੇ ਸੰਗੀਤ ਚੱਲਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਗੂੰਜਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਦੀ ਹਰ ਵਕਤ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿੰਨਾ ਸੁਖਦਾਈ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਥਾਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕਿ ਸੰਤ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਭਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕੀ ਮਰ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲਿਆ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ ਰੋਣ ਦਾ, ਹਰ ਘੜੀ ਸਾਡਾ ਰੋਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਮੂੰਹ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ ਬਸ ਐ ਜਿਵੇਂ ਮਰੇ ਮਰੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਆ। ਭਗਤ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਆਹੋ ਰੋਲਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਹਨੂੰ ਰੋਈਏ? ਰੋਵੋ ਸਾਕਤ ਬਾਪੁਰੇ। ਸਾਕਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ। ਸ਼ਕਤੀ ਮੈਨੇ ਮਾਇਆ, ਸ਼ਕਤੀ ਮੈਨੇ ਲక్ష్ਮੀ ਦੇਵੀ, ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਲక్ష్ਮੀ ਦੇਵੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ, ਬੁਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਮਾਇਆ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮੰਗੀਏ, ਹੋਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲక్ష్ਮੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕੀ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਸੱਚੇ ਮਨੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਮੰਗ ਲਿਆ, ਜਿੱਦਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮੰਗ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁੱਕ ਭਰ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਝੋਲੀ ਕਰੇਗਾ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੀ ਖੈਰ ਇਹਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਕਦੀ ਝੋਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਮੰਗ ਹੀ ਮਾਇਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਨੇ ਭੰਡਾਰ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਮੰਗੀਏ ਉਹ ਹੀ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਮੰਗ ਲਈਏ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਮੰਗ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ, ਮਾਇਆ ਦੇ, ਲక్ష్ਮੀ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਂ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ, ਰੋਵੋ ਸਾਕਤ ਬਾਪੁਰੇ, ਜੋ ਹਾਟੈ ਹਾਟ ਵਿਕਾਏ। ਹੱਟੀ ਹੱਟੀ ਵਿਕਣ ਤੋਂ ਭਾਵੇ, ਜਿਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕਾਰ ਹੀ ਕੀਤੀ ਏ, ਉਹ ਮਰ ਜਾਏ ਤੇ ਰੋ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਣੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਣਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਰੋਲਿਆ ਕਰੋ। ਪਰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸੰਤ ਮਰੇ ਉਦੋਂ ਨਾ ਰੋਵੋ, ਉਦੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਓ, ਉਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰੋ, ਉਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਭਲਾ ਕਦੀ ਘਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜ ਘਰ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਕਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਭਗਤ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਕਤ ਲਈ ਰੋ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਸਾਕਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਉਂ ਆਇਆ ਤਿਉਂ ਜਾਵੇਂ ਬੌਰੇ, ਜਿਉਂ ਜਨਮੇ ਤਿਉਂ ਮਰਨ ਭਇਆ। ਜਿਉਂ ਰਸ ਭੋਗ ਕੀਏ ਤੇਤਾ ਦੁੱਖ ਲਾਗੈ, ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਭਵ ਜਲ ਪਿਆ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਕਤ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਲਈ ਨਾ ਮਨਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ। ਜਿਉਂ ਆਇਆ ਤਿਉਂ ਜਾਵੇਂ ਬੌਰੇ। ਬੌਰੇ ਮੈਨੇ ਕਮਲਾ। ਓਏ ਕਮਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਆਇਆ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਬੜੇ ਸਖਤ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬੜਾ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਮਲਿਆ, ਓਏ ਭੋਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਉਂ ਜਨਮੇ ਤਿਉਂ ਮਰਨ ਭਇਆ। ਤੇਰਾ ਮਰਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਭਾਵ ਤੂੰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਆਇਓ ਤੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਇੱਥੋਂ। ਲਿਜਾਣਾ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਏ? ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਖੱਟੀ ਖੱਟਣੀ ਸੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ। ਸੱਚ ਵਪਾਰ
करो व्यापारी, ये व्यापार करना सी। दरगाह निभै खेप तुम्हारी, तुहाडा सौदा, तुहाडी दुकान, तुहाडी हट्टी, तुहाडी गड्डी तुहाडे निज घर पहुँच जाए, अपना साजो समान पूरा ही लद के लै जाओ, इस तरह कह रहे ने। क्योंकि इसी सच दा व्यापार, सच रूप व्यापार ये करो, ये तुहाडे नाल हमेशा हमेशा लई निभेगा। ज्यों आया त्यों जावें बौरे, ज्यों जन्मे त्यों मरण भया। इस तरह क्यों होया भला? सतगुरु सानू दस दिओ। ज्यों रस भोग कीए तेता दुख लागै। जिवें जिवें तू ये दुनियावी रसां दे भोग करदा है ना, जिवें जिवें तू दुनियावी रसां नू माणदा है, जिन्ना जिन्ना इन्हां नू माणदा है उन्ना उन्ना ही तैनूं वधेरे दुख लगदा है। दुख लगन तो भाव है परमात्मा तो दूरी वधदी है। जिवें जिवें असीं परमात्मा दे नेड़े जावांगे तिवें तिवें सुख वधेगा, जिवें जिवें दूर जावांगे तिवें तिवें दुख वधेगा। ये गल सतगुरु सानू समझा रहे ने। नाम विसार भवजल पया। हे शक्ति दे पुजारी मनमुख इंसान, तू परमात्मा दे नाम नू विसार के भवजल विच पै गया है, भाव जन्म ते मरण दे गेड़ विच पै जाना है। सतगुरु सानू समझा रहे ने, भगत जी सानू समझा रहे ने, भई तुसीं असी रवांगे तो इस माया जंजाल दे विच ही, इहदे चों बाहर ते नहीं निकलना। क्योंकि जिहड़ा संसार है ना, ये है ही माया। संसार पूरा माया दा रूप है। क्योंकि इसनूं गुरबाणी विच आख्या गया ना कि आपी ने आप साजियो, आपी ने रचियो नाओ, दोई कुदरत साजी है। ये जिहड़ी कुदरत है ना, ये माया है। ये जिन्नी साजना रची है ना परमात्मा ने, समुची माया है। आपां इहदे विचों बाहर नहीं निकलांगे, रवांगे इहदे विच। इहदे विच रहिंदियां सिर्फ सुरत नूं उच्चा उठाना है, मन नूं इन्हां जंजालां विचों कढना है। शरीर करके सारे काम करने ने, कोई भी नहीं त्यागना, कोई काम नहीं छड्डना। सब इसे तरह ही करी जाने जिवें आपां करी जाने आ। पर इहदे विचों सुरत नूं बाहर कढ लैना है। सुरत शब्द नाल जोड़ लैनी है, जिहदे नाल जुड़न करके असीं अपने निज घर विच पहुंच सकदे हां, असीं अपने असली टिकाणे ते पहुंच सकदे हां। सो भगत जी सानू ये समझा रहे ने कि शक्ति दी पूजा दा त्याग करो, परमेश्वर दी पूजा करो। ते सिੱਖੀ विच परमेश्वर दी पूजा की है? किते ना होवे कि घर जाके धूप तखा लो ते जोत जगा लो ते उत्थे फोटो रख के गुरु नानक साहब दी ओहदे ते गले हार पा लो, माला फड़ा दिओ। इस तरह नहीं करना, ये कोई पूजा नहीं सिੱਖੀ विच। सिੱਖੀ विच पूजा की है? पूजा कीचै नाम ध्याइयै, विन नामै पूज ना होए। ਜਿਹੜੀ पूजा तुसी करदे हो ना, मैं किन्नी वारी आखदा रहिना भी असीं इत्थे इहो जे काम नहीं करने, फुੱਲ ना चढ़ाओ, अगरबत्तियां ना तुखाओ, जोतां ना जगाओ, इन्हां दी जरूरत नहीं। ये मैं अपने कोलों नहीं कहंदा, गुरबाणी आखदी। गुरबाणी अपना गुरु है, अपना गुरु आखदा ये गल। मैं तो सिर्फ मैसेज गुरु दा तुहाडे तक पहुँचाना वा भी इस तरह की पूजा साडे सतगुरु नूं मंजूर नहीं। केड़ी पूजा मंजूर है? नाम ध्याइयै। पूजा कीचै, केड़ी पूजा करिए? नाम ध्याइयै। परमात्मा दे नाम वे सुरत जोड़िए। नाम वे सुरत जोड़ना सच्ची पूजा होएगी परमात्मा दी। वो आपां किते भी जोड़ सकदे हां। घर होइए, काम ते होइए, बाहर गए होइए, घुम्मण फिरन गए होइए, किते बाहर खांदे पींदे होइए, सब थावां ते आपां अपनी सुरत नूं उस मालक नाल जोड़ना है। जिवें ही मालक नाल सुरत जुड़ेगी, शब्द नाल सुरत जुड़ेगी, फिर असीं शक्ति दी पूजा नूं छड्ड के असीं निराकार दी पूजा वल अपना रुख कर लिया होएगा। जिवें जिवें उहदे वल रुख वधेगा, तिवें तिवें आपां भी गृहस्थ विच रहिंदे होए संत बन सकदे हां। जदों आपां संत बन गए फिर की होएगा? फिर असीं भी अपने निज घर विच पहुंच जावांगे, जिस घर दे बड़े सोहणे उच्चे उच्चे दरवाजे ने, जिस घर विच 24 घंटे अंम੍ਰਿਤ नाम दी वरखा हुंदी है, जिस घर विच हर वक्त सत संगत जारी है, ते जिस घर दे विच अनहद नाद दी कनकोर हर वक्त हुंदी रहिंदी है,
ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮਨ ਉਖੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਓ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਏ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜ ਘਰ ਜੇ, ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਏ, ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਖੀਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੀ ਵੀ ਬਾਂਹ ਫੜੋ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਿੱਜ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵਿਖਾਓ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੁਖ ਮਾਣ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਨਿਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਾਪ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।